Hello students, this is the video of English Reader, Lesson 8, Jackie and the Bear. This is a humorous story. In this story, 4 cousins plan to go for camping on a hillside. And one of the cousins, Jackie, had an encounter with a bear. Now, I am going to give you the story in detail. It was a perfect place to pitch a tent on a pine-clad ridge of a hill with a view of the lake below. First of all the cousins selected the site to pitch their tent, and they pitched their tent where they have beautiful view of lake. Fishing, trekking, stargazing and other fun activities were on their list. They were planned to do all these things like fishing, trekking, stargazing. The cousins settled in to enjoy the evening around a campfire with Veer playing the guitar and Karan, Jackie and Samir singing songs. After that, they all settled in the evening and enjoyed campfire and Veer was playing the guitar and Karan, Jackie and Samir singing songs. After 2 days, 2 morning later, the boys realized that they were down to the last of the nuts and instant noodles they had bought. Before going to the trekking, they all had some food to eat, like nuts and instant noodles. But the things they had brought to eat were out of supply. Means they have scarcity of food now. Jackie, the second youngest, volunteered to stay and hold the camp while the remaining 3 went to Rimbeck, a little country farmhouse that kept supplies for trekkers on their way up to Pelling. और जो सेकेंड यंगेस्ट था कजन्स में जैकी, उसने स्वेच्छा से टेंट में रुकना स्वीकार किया कि मैं रुकूंगा, और बाकी लोग नीचे जो कंट्री फार्म हाउस रिम्बक जाकर वो लोग वहाँ से फूड आइटम्स लेने के लिए गए. करण सजेस्टेड मूविंग टू अनदर साइड बट जैकी वॉज एडमेंट he would keep watch until they returned with supplies. Karan had suggested to move to another side as it was far from the Rimbeck, but the Jackie was adamant. He was decided that no, he would keep here and watch until they all will return with supplies, with food. There's only one way. One of you get a monster twin to entertain you, they said jokingly. वो लोग जाते वक्त मजाक में बोले कि काश कोई दानव टाइप का होता जो तुम्हें कंपनी देता. Come back soon, he shouted after them. उनके जाने के बाद जल्दी आना बोलकर वो उनकी राह देखने लगा. It was now late afternoon and there was still no sign of them. और अब उनका वेट करते करते काफ़ी देर हो गया और जैकी परेशान होने लगा. With nothing to do but wait, Jackie lit a campfire. Every now and then he fed it logs. और जैकी वेट करते करते वो कैंप फायर की आग को मेंटेन करने के लिए उसमें लॉग्स डालता रहा, लकड़ियाँ डालता रहा. Suddenly he heard the approach of the unknown, crackling the twigs and rustling the dead leaves. और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसको कुछ ऐसा सुनाई पड़ा कि कोई अननोन चीज जो कि लकड़ियों को और पत्तियों के बीच से गुजरती हुई उसके पास आ रही है. जैक रोज स्लोली टू हिज फीट, हिज नीज अ लिटिल वोबली. और वो धीरे से अपने पंजे के बल और घुटने के बल धीरे से उठा. आह, ही बेलोड मिनेसिंगली. और वो आह की आवाज के साथ उसे लगा कि उसका साउंड थोड़ा सा तेज हुआ. उसे लगा कि कुछ न कुछ हार्म होने वाला है, कुछ न कुछ नुकसान होने वाला. अ ग्रॉल रिप्लाइड एंड बियर पेस इनटू व्यू. और उसके रिप्लाई में एक उसको कोई एनिमल की आवाज़ सुनाई पड़ी, उसके दहाड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ी, और उसके सामने उसके आंखों के सामने एक बेयर उसके सामने बढ़ रहा था. जैकी सपोर्टेड हिमसेल्फ अपॉन ए स्टिक एंड रिगार्डेड हिज विजिटर. और
जैकी ने अपने आप को संभाला स्टिक के सहारे और आने वाले को उसने रिगार्ड दिया, मीन्स खड़ा हो गया. द बेयर वॉज एविडेंटली a veteran and a fighter, for the black of his coat had become tawny with age. The bear which he saw was aged and it looked like a veteran and a fighter, means एक पुराने सिपाही सैनिक की तरह उसके अंदर रौब था. There was confidence in his gait and arrogance in his small twinkling eyes. और उस बेयर की चाल में गर्व था और एक अलग सा एरोगेंस था, उसकी आंखों में चमक थी. He rolled back his lips and disclosed his white teeth. और वो अपनी जीभ को रोल कर रहा था और अपने white teeth को निकाल के दिखा रहा था. The fire magnified the red of his mouth. और कैंप फायर की जलती हुई आग से उसके मुंह के अंदर का पार्ट भी और रेड दिख रहा था. जैकी हैड नेवर बीन सो टेरिफाइड. हाँ, ही रोड. जैकी इससे पहले इतना कभी भी नहीं डरा था. वो दहाड़ा. द बेयर इंटरप्रेटेड दिस एज ए चैलेंज. और बेयर ने उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया. ही अप्रोच्ड वेरीली. और धीरे धीरे उसके जैकी के पास बढ़ता गया. एज ही केम नियर फियर ग्रिप्ड जैकी. जैसे ही वो आगे बढ़ता रहा और डर के मारे जैकी का हाल खराब होता गया और ज़्यादा डरने लगा. ही क्राइड आउट एंड देन डार्टेड अराउंड द कैंप फायर. और वो जैकी चिल्लाया और कैंप फायर के चारों तरफ भागने लगा. द बेयर सीम टू बी अम्यूज्ड. और बेयर ये देखकर बेयर खुश हुआ. ओह, दिस थिंग वोंट फाइट, इट रन्स. उसे लगा कि ये जो सामने वाला है वो मुझसे लड़ाई नहीं करेगा बल्कि मुझसे डर के भाग रहा है. वेल, लेट्स कैच इट देन, सेड द बेयर टू हिमसेल्फ. अब बेयर ने अपने आप से कहा कि अब तो इसको मैं पकड़ के ही रहूंगा. द बेयर स्टार्टेड गोइंग अराउंड द कैंप फायर. जैकी श्रीक्ड एंड रैन फ्यूरियसली. और जैसे ही बेयर आगे कैंप फायर की तरफ बढ़ने लगा, जैकी चीखने चिल्लाने लगा डर के मारे. ट्वाइस अराउंड दे वेंट. और जैकी आगे आगे, बेयर उसके पीछे पीछे कैंप फायर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे. द बेयर वॉज कैचिंग अप. बेयर उसको पीछा करके उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था. इन डेस्परेशन जैकी फ्ली इनटू द टेंट. और डर के मारे, दुख के मारे, घबराहट के मारे जैकी टेंट के अंदर घुस गया. द बेयर स्टॉप्ड एंड स्निफ्ड एट द एंट्रेंस. ही सेंटेड द सेंट ऑफ मेनी मेन. फाइनली ही वेंचर्ड इन. और एज एनिमल्स हैव स्निफिंग पावर, और उस पावर से उसने महसूस किया कि टेंट के अंदर कुछ और भी इंसान हो सकते हैं. बट फाइनली वो हिम्मत करके एंटर कर गया टेंट के अंदर. Jackie crouched in a corner. The bear advanced, creeping, his blood burning, his hair erect, his jaws dripping. और जैकी जाके टेंट के कॉर्नर में छुप के बैठ गया था और बेयर धीरे धीरे आगे बढ़ा. उसकी आंखें एकदम, उसका बॉडी एकदम ब्लड बर्निंग हो रही थी, उसका खून खोल रहा था. और वो आगे आगे अपने बालों को खड़ा करके, और उसके जो जॉल्स थे जो चेहरे के नीचे, वो सब हिल रहे थे क्योंकि वो थोड़ा एज्ड था बेयर. जैकी yelled and rustled clumsily under the flap at the end of the tent. और जैकी चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसे बहुत अजीब तरीके से चिल्ला रहा था डर के मारे. Under the flap at the end of the tent. The bear snarled awfully and made a jump and a grab at his disappearing game. और बेयर चिल्ला के, चीख के, डराने के लिए उसके ऊपर कूदने की कोशिश कर रहा था. Jackie, now outside the tent, felt a tremendous paw grab his jacket. He screamed and wriggled out of his jacket like a schoolboy in the hands of an avenger. And when Jackie felt that something grabbed him, he quit out of the jacket. The bear howled triumphantly and jerked the jacket into the tent. It took him 2 bites, a punch and a hug before he discovered his man was not in it. और बेयर को लगा जैसे वो जीत लिया है, तो उसने जैकी तो जैकेट के बाहर हो चुका था और उसने जैकेट को झटका, टेंट में झटका और फिर इसमें 2 बाइट्स, 2 बार काटा, 2 पंच किया, 2 पंच मारा और उसको हक किया. एंड हक बिफोर, जब उसको ये पता चला कि द मैन वॉज नॉट इन इट, वो और गुस्सा आया. द पुअर बेयर फेल्ट चीटेड. उसको लगा कि मुझे धोखा दिया गया है. फॉर ए बियर ऑन ए स्प्री इन इज नॉट ए ब्लैक हेयर्ड पायरेट. और वो इस वक्त ऐसे कूद रहा था जैसे कोई ब्लैक हेयर्ड पायरेट लुटेरा. ही इज मेयरली ए हुडलम. ही ले डाउन ऑन हिज बैक
took the coat on his forepaws and began to play uproariously with it. और वो एक होडलुम की तरह, एक वायलेंट पर्सन की तरह हो चुका था. ही ले डाउन ऑन हिज बैक, और अपने बैक के बल पे बैठ गया. एंड टुक द कोट ऑफ हिज फोर पॉज, अपने चारों पंजों में उसने अपने कोट को दबा लिया. एंड बिगन टू प्ले अपरोरियसली विद इट, और जोर जोर से दहाड़ दहाड़ के चिल्ला चिल्ला के उससे खेलने लगा. बट कर्लिंग whoops and yells reached Jackie, who was now crying on a tree top. और इतने में जो जैकी था वो तब तक पेड़ पर चढ़ के चिल्ला रहा था, चीख रहा था, अपने आप को सेव करने के लिए, बचाने के लिए. ही ब्लड कर्डलिंग whoops and yells reached Jackie, और जब वो चीख रहा था तो जैकी तक आवाज पहुंची. Who was now crying on a tree top. He moaned a little speech meant for a prayer and a clung convulsively to the bending branches. और वो अपने किसी तरह से अपने आप को मैनेज कर रहा था, पेड़ पे चढ़ा हुआ था और उसने ब्रांचेस से अपने आप को चिपका रखा था. He gazed with tearful wistfulness at where his companion, the campfire, was giving dying flickers and crackles. और वो एक टक आंसू भर के, एक टक अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था, अपने साथियों का इंतजार कर रहा था. और कैंप फायर की आग भी अब लगभग बुझने लगी थी, और उसे लग रहा था कि सारी आग बुझ जाएगी तो अंधेरा भी हो जाएगा, इसलिए वो और परेशान हो रहा था अपने कंपेनियंस के लिए. फाइनली देयर वॉज अ रोर फ्रॉम द टेंट which eclipsed all roars, a snarl which would shake the silence of the mountain and cause it to shrug its granite shoulders. और उसके बाद अपने शिकार को उसमें ना पाकर अपने को चीटेड फील करके बेयर और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा. और उसके चीखने चिल्लाने से पूरा माउंटेन ऐसा लग रहा था जैसे कि हिल गया हो, और एंड कॉज इट टू श्रग इट्स ग्रेनाइट शोल्डर्स, और उसके ग्रेनाइट शोल्डर भी हिलने लगे थे, मतलब वो शेक करने लगा था. जैकी बाय दिस टाइम वॉज ऑल आइज. In the soft light of dusk and the embers of the fire, he saw the white tent quiver and fall with a crash. और जैकी ने अपनी आंखों के सामने से अपने टेंट को हिलते डुलते और गिरते, क्रैश होते देखा. The bear's merry play had disturbed the center's pole and brought the tent crashing on his head. और बेयर चूंकि टेंट को हिला डुला कर चिल्ला के और हिला के उसका जो टेंट का पोल था वो डिस्टर्ब हो गया, और टेंट क्रैश करते हुए बेयर के हेड पे ही गिरा. नाउ जैकी बिकेम द विटनेस टू ए माइटी सीन. और इस शक्तिशाली सीन को देखने वाला जैकी का हाल खराब था. द टेंट बिगन टू मूव, और टेंट भी चलने लगा. इट टुक फ्लॉपिंग स्ट्राइड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द लेक. ऐसा लग रहा था जैसे कि टेंट अपने आप चल रहा है, और जबकि उसके अंदर बेयर था, और बेयर लिपट गया था चारों तरफ से टेंट से, और जब वो मूव कर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे टेंट मूव कर रहा है. टेरिफाइंग साउंड्स केम फ्रॉम विद इन, रिप्स एंड टीयर्स, ग्रेट ग्रोन्स एंड पैंट्स. जैकी वेंट इनटू गिगलिंग हिस्टेरिक्स. और टेरिफाइंग साउंड्स जो टेंट के अंदर से आ रहे थे उससे वो परेशान हो जा रहा था. उसकी रिप्स एंड टीयर्स, ग्रेट ग्रोन्स एंड पैंट्स. जैकी वेंट इनटू गिगलिंग हिस्टेरिक. और अब उसको रोना ना आकर उसको हंसी आने लगी थी. द entangled bear could not get out of the tent and frantically rolled down the mountain. और बियर चारों तरफ से टेंट से लिपट चुका था, और उसके साथ ही वो माउंटेन के नीचे रोल कर करके लुढ़कता जा रहा था. So it came about that the three trekkers clambering up the hill saw their tent approaching like a white robed demon. और वो 3 ट्रकर्स जो वहां से वापस लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि उनका टेंट उनके पास कैसे आ रहा है. ऐसा लग रहा था जैसे कोई वाइट रोब्ड डेमन हो, वाइट ड्रेस में पहने हुए कोई डेमन, दानव या राक्षस जैसा लग रहा था. दे स्करीड टू वन साइड, देयर आईज ग्लीमिंग विद फियर. वो लोग उसको देखकर एक साइड हो गए, और उनकी आंखें डर के मारे, देयर आईज ग्लीमिंग विद फियर, उनकी आंखों में डर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था. द कैनवास बंडल स्वेप्ट पास्ट देम. और कैनवास के जो बंडल थे, जो कैनवास बंडल थे वो उनके पास से होकर गुजर रहे थे. दे लीन्ड
फेंट एंड डम अगेंस्ट द ट्रीज एंड लिसेंड, और वो लोग जो उनके पास पेड़ था उसी के पास जाके एकदम आवाज उनकी बंद, एकदम सन्नाटे में आ गए थे वो लोग और पेड़ से जाकर चिपक गए थे. बिलो देम इट स्ट्रक द बेस ऑफ ए ग्रेट पाइन ट्री वेयर इट रिदर्ड एंड स्ट्रगल्ड, और वहां पर एक पाइन ट्री था और वहां पर वो बार बार स्ट्रगल कर रहा था उससे निकलने के लिए. बेयर द थ्री वॉच्ड फॉर ए मोमेंट एंड देन हरीड टू द कैंप साइट, और तीनों ने कुछ देर तक ऐसी साइट को देखा, ऐसे दृश्य को देखा, उसके बाद वो लोग अपने कैंप की तरफ भगे. द बेयर कट लूज विद ए माइटी एफर्ट, और बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद, बहुत ही एफर्ट करने के बाद बेयर ने उस टेंट को काटा और उसके बाहर हुआ. ही कास्ट वन एगोनाइज्ड लुक एट द वाइट थिंग एंड देन रैन वाइल्डली इनटू द फॉरेस्ट, और फिर उसने बहुत अनोखी निगाह से, बहुत दुखी निगाह से उसने उस वाइट थिंग को देखा जो कि टेंट था, और फिर वाइल्डली फॉरेस्ट की तरफ भगा. द थ्री फियर स्ट्रिकन ट्रैकर्स रैन टू द रिबिल्ट फायर, और वो तीनों ट्रैकर्स रिबिल्ट फायर की तरफ आगे बढ़े. दे स्प्रैंग एट जैकी एंड ओवरवेल्म्ड हिम विद इंटरोगेशंस, और वो लोग लपक के जैकी के पास पहुंचे और उनसे बातचीत करके उसको पूरी कहानी पता चली. ही कंटम्पलेटेड द डार्कनेस एंड आंसर्ड लेजरली, उसने पहले डार्कनेस की कंटम्पलेट किया, उसके बाद फिर उन लोगों ने आराम से बैठ के बातें की. देयर वॉज ओनली वन ऑफ मी एंड आई गॉट ए मॉन्स्टर ट्विन, ही सेड, मैं यहाँ पर अकेला था इसलिए मॉन्स्टर ट्विन मेरे साथ हो गया, यही कह के उसने अपनी बात को खत्म किया. So students, this is the complete story of lesson 8, Reader, the Jackie and the Bear. Thank you students.